Okay, so we had dealt with the two types of method in capital accounts. One is fixed capital method, under which for every partner there will be two accounts. One is capital account, in which only capital transaction will be recorded, means additional capital, and all other transactions like drawings, interest on capital, interest on drawings, salary to partner, commission to partner, share in the profit, etc. All other transactions will be recorded in a separate account called as current account. So fixed capital method mein for every partner there is a capital account and current account. And there is another method, right? Fluctuating capital method, under which all the transactions of the partners, let it be capital or other transactions, will be recorded in a single account, that is capital account. Okay? Generally, the introduction of the capital is a non-recurring and all other transactions are recurring in the nature. So under fluctuating capital method, all non-recurring and recurring transactions are recorded in a capital account only. Clear? Now, let's continue. Okay. Question number 2. Let's see. Example number 2. Karan and Kiran are the partners in a firm, right, of Messrs. Mehta Enterprises. Karan and Kiran, they have started business of a ready-made garments of 1st April 2019, on which they contributed 5 lakhs each as their initial capital. So their initial capital is 5 lakhs. This is not opening balance, but they have contributed the capital. Entry रहेगी cash account debit to capital account credit. Karan has withdrawn rupees 20,000 and Kiran has withdrawn 15,000 for their personal use. These are the drawings. Interest on capital is allowed at the rate of 12% per annum, and interest on drawings is charged at the rate of, right, 3% per annum. Interest on capital we have to pay at the rate of 12%, and we will take from them interest on drawings at the rate of 3% per annum. Karan is entitled to salary rupees 1,800 per month. We have to calculate for 12 months. And Kiran is allowed to get a commission at the rate of 5% on the net sales. During the year, net sales rupees 2,50,000 and the net profit earned during the year is 60,000. Prepare partners capital account under fluctuating capital method and fixed capital method. पहले हम एक एक वैल्यूज ढूंढते हैं. Working note. Let's start. Working note. First, ठीक है, ले लो. Calculation of
interest on capital. Calculation of interest on capital. Karan and Kiran. बराबर? On opening capital. For 12 months. They started business on 1st April with 5 lakhs as their capital. बराबर? Then again 12% is interest on capital for 12 months, April से March. We are considering March as a year end. ठीक है? So 5 lakhs का 12% for the year. That will be 60,000. 60,000, 60,000. Is there any additional capital? No. This is the only capital. Entry will be interest on capital account debit. Total 1,20,000 लगाना है. 2. Karan to Kiran. अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो you will credit to current account. Karan's current account and Kiran's current account. अगर आप फिक्स कैपिटल फॉलो करते हो बिकॉज सब ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. बट अगर आप फ्लक्चुएटिंग फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट रहेगा. 60-60. ठीक है? And at the end of the year, this will be transferred to P&L. 60,000 समझने के लिए एंट्री लिख रहा हूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. $60,000. ठीक है? ये आ गई समझने के लिए, मतलब P&L के डेबिट पे आएगा 60,000 एंड कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेकंड, वर्किंग नोट नंबर 2, interest on drawings. Calculation of interest on drawings. Calculation of interest on drawings. How to calculate interest on drawings? We know, right? If dates are not given, we calculate interest on drawings for 6 months. And in this example, they are not given us dates. खाली इतना लिखा है करण के drawings 20 है, किरण के drawings 15,000 है बस. So Karan and Kiran. $20,15. At the rate of 3% है ना, rate of interest on drawings कितना है? 3%. Multiply by 6 divided by 12, 6 divided by 12. If dates are not given, we always calculate interest for 6 months. So 20,000 पे 3% for 6 months. 3%, 1% आएगा 200, 1% आएगा
ये परसेंट होना चाहिए, ठीक है। 1% आएगा 200, 3% आएगा 600, और मुझे उसका हाफ चाहिए 300। 15,000 का 1% आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 3, 450। 450 का हाफ 225, बराबर। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ए इनकम ऑफ द फर्म, क्रेडिट किया जाएगा इनकम को, डेबिट किया जाएगा पार्टनर्स को। सो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कब, जब हम कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट एज द केस में भी। किरण करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, करण से रिकवर करना है 300, रिकवर करना है मतलब उसको डेबिट करना है। किरण से रिकवर करना है 225, एंड इतने हमारी इनकम हो गई 525। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बीइंग इनकम इज ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। ये क्रेडिट है, अब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट किया जाएगा। $525 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पी एंड एल के क्रेडिट पे आता है, इसलिए हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के इफेक्ट पी एंड एल के क्रेडिट पे एंड कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट होगा। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में, करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड में, ठीक है। अच्छा, इसके सिवा और कुछ है? सैलरी, करण इज इंटाइटल टू सैलरी 1,500, लिख लेना। थर्ड, सैलरी टू करण। $1,800 फॉर 12 months। 1,000 मल्टीप्लाई बाय, मेरे हिसाब से वो 12,000 प्लस 12 9,600, 21,600। एंड फोर्थ, कमीशन टू किरण, विच इज इक्वल टू, उन्होंने बोला है 5% ऑफ नेट सेल्स, एंड नेट सेल्स आर 2,50,000। 5%, 2,50,000 का 10% 25,000 आएगा। 2,50,000 का 10% लास्ट डिजिट ऐड करो 25, मुझे 5% चाहिए मतलब हाफ। 25 का हाफ 12,500। अच्छा, इसकी क्या एंट्री आती है? सैलरी की, सैलरी की क्या एंट्री आती है, ध्यान देना। सैलरी की एंट्री आती है, किसको देनी है? करण। करण को सैलरी देनी है तो करण को क्रेडिट करो, इन सैलरीज एक्सपेंस डेबिट किया जाए तो एंट्री आएगी। लास्ट लेक्चर में मैंने एंट्री समझाई तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी टू करंट अकाउंट डेबिट या सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब? व्हेन देयर इज ए फिक्स कैपिटल, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल। एंड सैलरी बीइंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर is to be transferred to P&L. 21,600 to salary to current. 21,600, ठीक है। सो
हमें उसको सैलरी देनी है तो हम उसका कैपिटल या करंट अकाउंट में ऐड करेंगे, एंड बीइंग एक्सपेंस P&L को डेबिट करेंगे। तो P&L का डेबिट, कैपिटल या करंट का क्रेडिट, दो इफेक्ट हो रहे हैं। नंबर 4, कमीशन टू किरण। अगर हमें कमीशन देनी है, एक्सपेंस है फर्म का, एंट्री सैलरी जैसे आएगी, खाली हेडिंग रहेगा कमीशन। कमीशन टू किरण अकाउंट डेबिट 12,500 to Kiran's current account in case of fixed method, or capital account in the case of fluctuating, and being expense transfer to P&L debit। मतलब मैं क्लोज कर रहा हूं इन शॉर्ट। कमीशन को डेबिट बैलेंस था, क्लोज कर दिया। सो इंट्रीज में प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं। देखो, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढा, फिर मैंने एंट्री समझाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाला, फिर एंट्रीज, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, एंट्री समझ रहे, बाकी कुछ नहीं। इफेक्ट तो इजी है। चलो अब लिखते हैं ए। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो क्या रहेगा? प्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड देखते हैं क्या है। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी। देयरफॉर फिक्स कैपिटल में एक रहेगा कैपिटल अकाउंट, देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर कोई पार्टनर, किसी ने टाइप बॉक्स में टाइप किया है कि इफ ए पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, उस तब क्या होगा? एडिशनल कैपिटल वो कितने बार भी लाए, इट्स नॉन रिकरिंग ओनली, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। दस बार लाने से वो रिकरिंग नहीं हो जाता। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। चलो, ठीक है। सो कैपिटल करंट आ जाएगा, और यहाँ पे एक और कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ, मतलब मुझे फिर से फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ फिक्स कैपिटल में एवरी पार्टनर हैज टू अकाउंट्स, एक कैपिटल एंड दूसरा करंट। ध्यान देना, करण, किरण, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। एंड मैंने आपको उस दिन भी बोला था, दिस इज क्रेडिट मींस एडिशन, डेबिट मींस डिलीशन, कम। ऑन सिमिलर बेसिस करंट अकाउंट में ऐड करना है तो क्रेडिट करना होगा, करंट अकाउंट से माइनस करना है तो डेबिट करना होगा। करण एंड किरण, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है पढ़ो जरा ठीक से। उन्होंने मेंशन किया है कि उन दोनों ने 1 अप्रैल को 5 लाख कैपिटल लाया। कैपिटल ब्रॉट इन इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, सो क्रेडिट पे बाय कैश ऑब्लिक बैंक,
इसने 5 लाख लाया, इसने 5 लाख लाया, एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश के डेबिट पे कैपिटल के क्रेडिट पे, कैपिटल इंक्रीज हुआ उसकी वजह से क्रेडिट। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि इन दोनों की 20 एंड 15,000 की ड्रॉइंग्स है, तो कैपिटल कम करना है, बट एज वी आर मेंटेनिंग सेपरेट करंट अकाउंट, तो कैपिटल में माइनस करने की जगह मैं करंट को डेबिट कर दूंगा टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना है ड्रॉइंग्स, लेट मी चेक। ड्रॉइंग्स 20 एंड 15 है, 20,000 करण के, 15,000 किरण के। मैं स्प्लिट करके लिखता हूं, ठीक है। आगे ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में आ गए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ रिकरिंग वन, तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करना होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ढूंढा था इधर, 60,000, 60,000। यहां पे क्रेडिट, पी एंड एल में डेबिट। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाओ। 300 एंड 225 ड्रॉइंग्स डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 300 एंड 225, 300 एंड 225। आगे उसके बाद हमें सैलरी देनी करण को 21,600 की सैलरी देनी है, तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में ऐड करो बाय सैलरी, करण के कॉलम में 21,600। यहां पे क्रेडिट होगा, पीएनएल में डेबिट होगा। आगे फिर हमें कमीशन देनी किरण को 12,500 का बाय कमीशन। कितनी कमीशन आ गई, 12,500 हमने ढूंढा है, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट में क्या बाकी है देखो क्वेश्चन, राइट। उन्होंने लिखा है प्रॉफिट इज 60,000 एंड दे आर नॉट गिवन द रेशियो। वो कैसे पार्टनर है ये नहीं लिखा है, खाली इतना लिखा है करण एंड किरण आर द पार्टनर्स, बट क्या रेशियो है ये लिखा नहीं है। व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वी टेक देम एज ए इक्वल पार्टनर, मतलब 50% 50%। सो उनका 60,000 का प्रॉफिट है, दोनों में इक्वली बटेगा, 30,000 करण को, 30,000 किरण को। एंड शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट रिकरिंग होता है, करंट अकाउंट में आएगा बाय पी एंड एल। 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। चलो करो अब। नाउ बैलेंस कैपिटल 5 लाख, 5 लाख, कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, इसलिए इस मेथड को फिक्स कैपिटल बोला जाता है। 99% केसेस में कैपिटल विल रिमेन सेम। हाँ, इफ यू brought more capital, तो obviously closing capital will be more than opening capital. नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, सिक्सटी प्लस 30, 90, 90, 1,10,000, 1,11,600। यहाँ पे 300 आएगा, 300 प्लस 300, 600, 20, मतलब मुझे 91 लेना होगा, 91,300। अगर गलत है तो मुझे बोलो। 90, 1 लाख, 1,02,500, मतलब मुझे यहाँ पे 275 लेना होगा, तो 500 हो जाएगा। 225 प्लस 275, 500 हो जाएगा, ठीक है।
फिर मुझे यहाँ पे 7 लेना होगा, 12 आ जाएगा, 87,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। चेक करो बराबर है क्या, चेक करो। ठीक है, सो दिस इज राइट, ये दोनों कहां पे लिखे जाएंगे, लाइबिलिटी में। क्रेडिट साइड इज हेवियर देन डेबिट, दीज आर लाइबिलिटीज। अच्छा, ये दोनों क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, देयरफॉर अगेन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में 4 आइटम दिखेंगे, कौन कौन से, करंट कैपिटल 5 lakhs, किरण कैपिटल 5 lakhs, फिर करंट अकाउंट 91,300, किरण's करंट अकाउंट 87,275। ऐसे 4 अकाउंट्स लाइबिलिटी में दिखेंगे। बट अगर हमें उन्होंने बोला है मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो आंसर क्या आएगा, बी फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखते हैं, करण एंड किरण ना। ये खिचड़ी मेथड होती है राइट, इसमें सब मिक्स हो जाता है। एवरीथिंग विल गेट मिक्स्ड। सो उन्होंने कैपिटल या सब इसमें रिकॉर्ड होगा। देयर इज नो अदर अकाउंट फॉर पार्टनर, इसलिए सब इसमें रिकॉर्ड होगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक। दोनों ने मिला के 5 lakhs कैपिटल आया। उन्होंने ड्राइंग्स की 2 ड्राइंग्स 20,000 15,000। उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, कैपिटल क्रेडिट इंटरेस्ट भी क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऊपर लिखा होगा हमने 60,000 60,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ड्राइंग्स डेबिट करते कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट होगा, रिकवर करते हैं ना हम उनसे। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 300 225। उनको सैलरी देनी है, क्रेडिट देनी है तो क्रेडिट, लेनी है तो डेबिट। 21,600 की सैलरी देनी है करण को, हमें उनको कमीशन देनी है बाय कमीशन। कुछ तो 12,500 की कमीशन थी, यस 21,600 सैलरी, 12,500 कमीशन। एंड सब होने के बाद हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एज नथिंग इज गिवन, हम रेशियो हमेशा इक्वल मानते हैं, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट 30,000 30,000। And if you balance, you will get a capital of, देखते हैं, it will be 5 lakhs plus 91,300, ये रहेगा 5 lakhs 91,300, ये रहेगा 5 lakhs दोनों की टोटल 5 lakhs plus 87,250, 5 lakh 87,275। सो दोनों अकाउंट अगर साथ में लिखते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट साथ में लिखोगे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बन जाएगा। क्या बोला मैंने, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एक साथ लिखो तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मिल जाएगा। लिखो जल्दी, जल्दी करो चलो।
चलो जल्दी करो। मैडम व्हेन डू वी ओपन विथ बैलेंस? मैडम क्वेश्चन पढ़ो ना, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश इंग्लिश आनी चाहिए बहुत अच्छे से। क्या लिखा है पढ़ो। They started business with, they started means there is no opening balance. They started business by contributing rupees 5 lakhs each. Existing business होगा तो ओपनिंग बैलेंसेस रहेंगे ना। अगर बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है तो हाउ देयर विल बी ओपनिंग बैलेंस? तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं रहते, ठीक है? इसलिए वर्डिंग पे गया मैं, ठीक है? अगर वो फर्स्ट ईयर नहीं होता तो उन्होंने लिखा होता दे हैड देयर कैपिटल्स ऑफ रुपीज 5 lakhs ईच एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐसे लिखा होता, ठीक है? ठीक है, चलो आई थिंक लिख लिया होगा। आई नो यू हैव आंसर विथ यू इन टेक्स्ट बुक, बट स्टिल आई विल एडवाइज यू टू राइट इट, ठीक है? आगे, so when they say your started business, so means your contributed cash, इसलिए हम वहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐसे एंट्री होगी, इसलिए कैपिटल के क्रेडिट पे आ गया बाय कैश, ठीक है? बट अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस होता तो दे वुड हैव रिटन लाइक रेट देयर कैपिटल्स वर 5 lakhs each at the beginning of the year, ऐसे लिखा होता। इन दैट केस आई वुड हैव टेकन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है? आगे, वर्डिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। आगे, क्वेश्चन नंबर 3। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हर चैप्टर में मिलेगा आपको, हर चैप्टर में कैपिटल अकाउंट करना है हमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर अमे एंड मिस्टर आशीष आर द पार्टनर्स, वो वाला, ठीक है? नाउ राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, इफ, लिख लेना, दिस इज if partnership deed is silent, as to a, if deed is silent, deed में कुछ लिखा नहीं है, deed is an agreement, उसमें हर चीज डिसाइड की होगी पार्टनर्स के बीच में। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या? if partnership deed is silent as to profit sharing ratio, PSR, जैसे अभी एक क्वेश्चन में हमने देखा, अभी दे आर नॉट गिवन यू PSR, डीड फॉर मी इज ए क्वेश्चन, हम स्टूडेंट के लिए डीड इज ए क्वेश्चन, ठीक है? बट इन एक्चुअल में देयर विल बी डीड, डीड गवर्न द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो हम डीड को रेफर करेंगे, बिकॉज डीड में उन लोगों ने जो जो डिसाइड किया है वो लिखा होगा। सो इफ डीड इज साइलेंट,
we refer to the Indian Partnership Act, right? If deed is silent, then, right, Indian Partnership Act will prevail. And as per Indian Partnership Act, if प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, अगर उन्होंने कोई पीएसआर डिसाइड नहीं किया है, वी विल ट्रीट इक्वल पीएसआर, राइट? हम बोलते हैं पार्टनर्स आर इक्वल. सपोज ए बी सी एंड डी आर द पार्टनर्स, बट दे हैव नॉट डिसाइडेड एनी रेशियो. पीएसआर उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, डिसाइड नहीं है. तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द रेशियो इज 25%, 25%, 25%, 25%. अगर 3 पार्टनर्स है तो उनका रेशियो रहेगा 1/3, 1/3, 1/3. अगर 2 पार्टनर्स है 50%, 50%, 1:1. ये कब? व्हेन दे आर नॉट डिसाइडेड द रेशियो. अगर उन्हें कुछ अलग रेशियो डिसाइड किया है, दैट रेशियो विल बी प्रिवेलिंग. लाइक उन्होंने बोला हमें 3:2 पार्टनर्स है, तो जो भी प्रॉफिट्स रहेंगे वो 3:2 में डिवाइड होंगे. कभी कभी वो डिसाइड भी करेंगे कि हम इक्वल पार्टनर्स रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे तुम बोलोगे वैसे पीएसआर रहेगा. अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया तो इक्वल पार्टनर्स. बी, नो इंटरेस्ट if partnership is silent as to interest on capital. If partners have not decided about the interest on capital, rate of interest on capital, then no interest is to be given. हम पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देंगे. अगर डीड में है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अदरवाइज नहीं. मतलब उन लोगों को पहले डिसाइड करना होगा कि आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ही हम एज ए अकाउंटेंट उनको इंटरेस्ट देंगे, अदरवाइज देंगे क्या? नहीं. सी, if deed is silent as to interest on drawings, A and B are the partners. B ने बहुत ड्राइंग की है and A wants to charge interest at the rate of 12%. A बोलता है यार तूने बहुत ड्राइंग किया, हम रेट फर्म तो पे 12% से इंटरेस्ट लगाएगी. Can A levy the interest or firm can levy the interest? Depends on what is decided between the partners. अगर पार्टनर ने रेट 8% डिसाइड किया है तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 12%. If partner has not decided anything about interest on drawings, the firm cannot charge interest on drawings. So लिख लेना, no interest to be charged. मतलब बी ने बहुत ड्राइंग की है, ए बोलता है हम इंटरेस्ट लगाएंगे, बट उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, तो कैन फर्म चार्ज द इंटरेस्ट टू बी? नो. अगर आपको इंटरेस्ट लगाना है तो पहले डिसाइड करो, बाद में नहीं चलेगा. आप बाद में डाल सकते हो, बट आपको डीड रिवाइज करनी पड़ेगी उसके लिए. समझ में आ रहा है? सो इफ डीड इज साइलेंट, डीड में कुछ लिखा नहीं है पीएसआर के बारे में, तो पीएसआर कितना लेंगे हम? इक्वल. अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा क्या? नहीं. हम देंगे क्या पार्टनर को? नहीं. अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट लगाएंगे क्या उनके ड्रॉइंग्स पे? नहीं. डी, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर. ए बी आर पार्टनर्स एंड ए दिन रात काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ए बोलता है मैंने बहुत काम किया, गिव मी सैलरी. इज ए इज इंटाइटल्ड टू सैलरी? नो. इफ डीड इज साइलेंट, डीड में कुछ लिखा नहीं सैलरी के बारे में, किसको कितनी मिलेगी, तो ए विल नॉट गेट सैलरी, चाहे वो कितना भी काम करे. अगर तुझे सैलरी चाहिए तो तूने पहले ही डीड में डिसाइड करना चाहिए था. समझ में आ रहा है? सो इफ डीड इज साइलेंट एज टू सैलरी और कमीशन, डीड में कुछ लिखा नहीं है, किसको सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, कुछ नहीं लिखा है. In that case, partners are not entitled to salary. No salary to partners. No salary or commission to partner.
नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। आपने जो डिसाइड किया है वही होगा, अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया तो नहीं होगा। नंबर, इसके सिवा और कुछ है? लेट मी चेक। यस, देखते हैं। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, उसने 10 लाख का कैपिटल डाला है, एंड उसके बियॉन्ड, 10 लाख के बियॉन्ड, he has given 4 lakhs का लोन टू द फर्म, फर्म requires money, firm is in need of money, and firm instead of borrowing money from the bank, right, firm has borrowed money from the partner, पार्टनर से पैसे लिए। पार्टनर हैज गिवन नॉट एज ए कैपिटल, पार्टनर ने उसको लोन बोल के दिया। पार्टनर देते टाइम ही बोलता है ये मेरा कैपिटल मत बोलो, इसको लोन बोलो। समझ में आ रहा है? देखो, अगर वो कैपिटल बोल के देगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ डीड इज साइलेंट, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस अमाउंट पे। उसने 10 लाख जो कैपिटल दिया है उस पे भी नहीं मिलेगा, एंड जो 4 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है बिजनेस को, उसको उस पे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए तो सब पार्टनर्स ने पहले ही डिसाइड करके रखना चाहिए कि हाँ, हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे एंड इस रेट पे देंगे, लाइक दैट। बट इफ ऐसे कुछ डिसाइड नहीं हुआ है तो आपका कैपिटल कितना भी ज्यादा हो, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप कभी लाइफ में पार्टनर होते हो तो मेक श्योर दिस थिंग्स। अगर आपको अलग ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो पहले वो डीड में लिख दो कि आपको कितना चाहिए, और बाकी लोगों ने वो एक्सेप्ट करना चाहिए तो ही डीड होगी, सबकी साइन जरूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो डीड में लिख दो कि राइट, हम पार्टनर्स को इतने रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर आपको किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना है तो डीड में वो पहले होना चाहिए क्लॉज कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। अगर आपको सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, तो डीड में वो होनी चाहिए चीज, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। डीड में होनी चाहिए मतलब एवरीवन शुड एग्री, सबने उस डीड पे साइन चाहिए सबकी। एंड द लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए पार्टनर। अगर पार्टनर बियॉन्ड हिज कैपिटल एडवांसेस मनी टू द फर्म एज ए लोन, स्पेसिफिकली बोलता है इट इज नॉट कैपिटल, इट इज अ लोन, बिकॉज कैपिटल सबसे एंड में मिलेगा। बिजनेस जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी तब उसको उसका कैपिटल रिटर्न मिलेगा, लोन पहले रिपे हो जाएगा। इसलिए वो बोलता है कि दिस इज मोर देन माई कैपिटल एंड आई वांट टू गिव इट एज ए लोन एंड नॉट एज एडिशनल कैपिटल। उसकी एंट्री आती है। कैपिटल देगा तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बट अगर लोन देगा तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पार्टनर। कैपिटल इज डिफरेंट एंड लोन फ्रॉम पार्टनर इज डिफरेंट। लोन फ्रॉम पार्टनर इज रिपेड अर्लियर टू द कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो वो बोल रहा है कि ये पैसा ले लो एज ए लोन, तो फर्म विल शो एज ए लोन एंड नॉट एज ए कैपिटल, एंड उस पे इफ डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम ए पार्टनर, पार्टनर ने जो लोन दिया है उसका इंटरेस्ट कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, इट इज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। सो एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने रेट दिया है 6% पर एनम। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर डीड में लिखा है तो डीड प्रिवेल करेगी, इफ डीड इज साइलेंट एक्ट विल प्रिवेल। एंड एक्ट में लिखा है पार्टनर को, पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, फर्म कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, एंड अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे मार्केट में कितना भी रेट क्यों ना हो। अगर तुझे 6% ज्यादा चाहिए तो तुम लोगों ने पहले डिसाइड करना चाहिए था, आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया, इसलिए एक्ट बोल रहा है। ठीक है, ऐसे। लेट मी चेक, we can make the changes and update the obviously anytime, right, in any time, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई थिंक द बैलेंस ऑफ
किसका? अच्छा, लेट मी चेक. कैलकुलेशन एरर हो सकती है. नहीं, बराबर है मैडम. माइन इज करेक्ट. It's perfect. 5,91,300, 5,87,275. Generally, I don't make errors in calculation. मैं orally calculate करता हूँ. Generally मैं error नहीं करता. ठीक है. So, try to understand what I said. ये कब? जब पार्टनर नहीं. तो अब एग्जाम्पल ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ. Is it possible to convert capital into loan or part of capital into loan? Always remember एक चीज. Partnership is a relation. Everything is a possible provided other partners agrees to that. सब कुछ पॉसिबल है बट बाकी पार्टनर उसको एग्री होनी चाहिए. समझ में आ रहा है. अकेला पार्टनर कुछ नहीं कर सकता. बाकी पार्टनर्स की भी सहमति की जरूरत होती है. सो इफ एडिशनल कैपिटल इज ब्रॉट एंड द डेट व्हेन इट वाज ब्रॉट नॉट गिवन, देन टेक द फर्स्ट डेट. एडिशनल कैपिटल की डेट नहीं दी है तो जनरली फर्स्ट डेट मतलब 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है. आगे दैट इज स्टैंडर्ड अजम्पशन. हम 12 मंथ के लिए इंटरेस्ट देते हैं. फिर ऐसे मानते हैं कि एडिशनल कैपिटल इज ऑन द 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ्स का हम इंटरेस्ट देते हैं. ठीक है. इसलिए अगर क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया तो हम इक्वल लेते हैं. अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कुछ लिखा है तो हम इग्नोर करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिखा है हम इग्नोर करते हैं. सैलरी कमीशन कुछ लिखा नहीं है हम इग्नोर करते हैं. समझ में आ रहा है. बिकॉज हमारे लिए डीड रहेगी क्वेश्चन एंड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम वो नई चीजें करेंगे. ठीक है. आगे नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला अमय का. हम्म. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Mr. Amay and Ashish are the partners in a firm titled as Messrs. Anand Enterprises, sharing profits and losses 3:2 respectively. So they have given you ratio 3:2 ratio है. जब उन्होंने डिसाइड किया 3:2 तो 3:2 रहेगा. On 1st April 18 their capital balance were, now they have said उनके कैपिटल बैलेंस थे तो दिस इज ओपनिंग कैपिटल एंड नॉट बाय बैलेंस लिखना पड़ेगा ना कि बाय कैश लिखना पड़ेगा. 1,50,000. Their drawings during the year 20,000, 25,000. Dates of drawing not given. So if I have to calculate the interest, I will calculate for 6 months. As per the deed, 10% per annum interest is to be allowed on capital. Capital पे 10% interest charge करेंगे and 12% per annum interest is to be charged on the drawings. और उनके drawings पे 12% interest on drawings calculate करेंगे but for 6 months in this example. Mr. Amay gets salary of 3,000 per month. Total उसकी salary 36,000 रहेगी. Yes. And Mr. Ashish is entitled to a commission of 5% on net sales, which is 4 lakhs. 4 lakhs का 10% 40,000 आता है. 5% 20,000 आएगा तो उसकी commission 20,000 होगी. The divisible profits is 90,000. This 90,000 will be divided between Amay and Ashish in the ratio of 3:2. 90,000 divided by 5 करोगे तो 18 आएगा. 90,000 divided by 5 करोगे तो 18 आएगा. 18 multiplied by 3, 18 54, 54,000, and 18 multiplied by 2 is a 36,000. So 54,000 and 32,000 is the distribution. Partners prepare partners capital showing. अब मैं directly लिख दूं. ठीक है. Directly. अब वर्किंग नोट की भी जरूरत नहीं, ध्यान देना. फर्स्ट फिक्स कैपिटल मेथड, ध्यान देना. सो कैपिटल अकाउंट छोटा रहने दो बिकॉज इतने ट्रांजैक्शन नहीं होते. एक ही ट्रांजैक्शन होता है.
रहेगा तो एक ही ट्रांजैक्शन रहेगा, एक ओपनिंग बैलेंस है, दूसरा एडिशनल कैपिटल, इसके सिवा उसमें कुछ नहीं रहेगा। तो 2-3 लाइन में खत्म हो जाता है। इट्स मोर देन इनफ। एंड एक और अकाउंट करना है। देखते हैं। सो फिक्स कैपिटल में कैपिटल एंड करंट, एडिशनल कैपिटल छोड़ के बाकी सब ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। कौन कौन है? अमेय एंड आशीष। अमेय एंड आशीष, ठीक है, देखते हैं। एवरीवन, हाँ, they are given their capitals for 1,50,000। उनके कैपिटल 1,50,000 थे। तो कैपिटल के क्रेडिट पे बाय बैलेंस बॉट डाउन, कैपिटल क्रेडिट से स्टार्ट होंगे। जनरली क्रेडिट बैलेंस रहता है कैपिटल में, एंड अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो डेफिनेटली कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा आग बंद करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय कैश नहीं लिखा बिकॉज दे आर ऑलरेडी द बैलेंस, ठीक है। आगे फिर उनकी ड्रॉइंग्स 20 एंड 25,000 है। ड्रॉइंग्स कैपिटल्स को डेबिट नहीं करनी है, करंट अकाउंट को डेबिट करनी है। टू ड्रॉइंग्स, बी केयरफुल। $20,000 एंड 25,000, ठीक है। आगे मिल गया, ये आ गया आपके ड्रॉइंग्स। अब उन्होंने बोला है कि हमें उसको 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है? 1,50,000, उससे सिवा ज्यादा नहीं। ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 है, उस पे 12 मंथ का, 50,000 ओपनिंग कैपिटल है, उस पे पूरे मंथ का। तो डायरेक्टली क्रेडिट कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली। इसका 1,00,000 का कैपिटल दिख रहा है कि हमें का 1,00,000 का कैपिटल है, उस पर 10% बोला है उन्होंने। 10%, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। 10% इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। सो 1,00,000 पे ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का 10% के हिसाब से 10%, 1,00,000 का 10% 10,000। नो नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट, अगर आप थोड़े समझ के करोगे। कुछ एडिशनल कैपिटल है क्या? नहीं है, तो उसका ऐड करने की जरूरत है क्या? नहीं। कैपिटल कितना है इसका? आशीष का 50,000 पे 10% 5,000 आएगा पूरे साल का। सो 10,000 एंड 5,000, 10,000 एंड 5,000। यहाँ पे क्रेडिट हो गया, कैपिट करंट अकाउंट में ऐड किया। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे रहेगा? P&L के डेबिट पे रहेगा। इधर क्रेडिट मतलब कहाँ पे डेबिट रहेगा वो। आगे उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हमें उसको 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है। कितना ड्रॉइंग्स है? 20 एंड 25। ड्रॉइंग्स डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डेबिट। दिस इज फॉर 6 मंथ्स। सो 20,000 का 12% ना, 12% के हिसाब से 20,000 का 1%, लास्ट के 2 डिवाइड करते जाओ। 1% के लिए 200 आता है। 1% 200, 12% 2,400। यस 2,400 डिवाइडेड बाय 6 मंथ्स करना है, मतलब डिवाइडेड बाय 2। 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर, हाफ 2,400 का हाफ 1,200। 25,000 का 12%, 1% रहेगा 250, 1% रहेगा 250। मुझे 12% चाहिए,
12%, मतलब 250 का 10% इज 2500 प्लस 250 का 10% इज 2500 एंड 2% रहेगा 500, 3000, 3000 का हाफ 1500। चेक करो बराबर है क्या। मैं ओरली कैलकुलेट करता हूं, मेरे दिमाग में मैं कैलकुलेशन रखता हूं लाइक दिस। यहाँ पे मुझे उसका 25,000 का 12% निकालना है, बराबर। फॉर 6 मंथ्स निकालना है। वाई 6 मंथ्स? बिकॉज डेट्स ऑलवेज रिमेंबर, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 3 3 कैरिड, 12 प्लस 5, 12 प्लस 3 15, आ गया 1500। ठीक है, यहाँ पे डेबिट हुआ है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट वाला रहेगा। कहां पे? P&L में। अच्छा, उसके बाद हमें सैलरी देनी है अमय को 3000 पर मंथ, तो अमय के करंट अकाउंट में ऐड करेंगे बाय सैलरी। 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, 36,000 करंट अकाउंट के क्रेडिट पे है, मतलब कहां पे डेबिट रहेगा? कहां पे डेबिट रहेगा? P&L के डेबिट पे। एंड फिर हमें कमीशन देनी है। कितनी कमीशन देनी है? पढ़ो। 5% ऑन नेट सेल्स विच आर 4 lakhs, 4 lakhs का 10% 40,000, हमें 5% चाहिए 20,000। कमीशन करंट अकाउंट को क्रेडिट हो गई, डेबिट होगी P&L में। ठीक है, एंड हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेट प्रॉफिट 90,000 इन 3:2, जो मैंने बोला 54,000 एंड 36,000 होगा। एंड देयरफॉर द फाइनल करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल तो बहुत सिंपल है, जनरली बोला मैंने, फिक्स कैपिटल रिमेन सेम। फिक्स कैपिटल में कैपिटल रिमेन सेम, इसलिए उस मेथड को हम फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं। यहां पे कैपिटल कब चेंज हो सकता है? खाली दो एक्सेप्शनल केसेस में, एक एडिशनल कैपिटल एंड दूसरा विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, जो हमारे 12th में नहीं है। एंड दोनों लाइबिलिटी में लिखे जाएंगे, ट्रेड बैलेंस ऐसे। तो लाइबिलिटी में दिखेगा अमे कैपिटल 1 लाख, आशीष कैपिटल 50,000। अब करंट अकाउंट के बैलेंस ढूंढने, दिस इज 80, 80 plus 10 90, 90 plus 10 1 lakh, credit is 1 lakh, 1 lakh minus 20 80, 80 minus 1000 79, 79 minus 200 78 800। यहाँ पे 20 plus 36 56, 56 plus 5 56 plus 5 61, 61 minus 25 करना है ना, तो 61 minus 20 करता हूं पहले 41, 41 minus 5 36, 36 minus 1000 35 minus 500 34 500। होपफुली करेक्ट रहे। If it's wrong, please let me know. If it's wrong, please let me know. Yes. Next. So मिल गया। ये दोनों भी लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। Always remember one thing. If you are following fixed capital, if you are following fixed capital, अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट जनरली शोज क्रेडिट बैलेंस, बट दे में ऑल्सो शो डेबिट बैलेंस। यहाँ पे करंट में क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, देयरफॉर दीज आर क्रेडिट बैलेंसेस। हम इनको लाइबिलिटी में लिखेंगे, तो लाइबिलिटी में 4 आइटम आएंगे, 2 कैपिटल के, 2 करंट अकाउंट के। और इन दोनों को अगर हम साथ में लिखते हैं तो हमें मिल जाएगा कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। लिखो बी, सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखते हैं. अमे एंड आशीष. बाय ओपनिंग बैलेंस. यस दे हैव गिवन अस. दोनों का कॉम्बिनेशन कैपिटल में बैलेंस उन्होंने बोला था 1,50,000. दोनों को साथ में लिखो, यू विल गेट फ्लक्चुएटिंग. पाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 5,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है. 10,000 5,000. ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होता है. टू ड्राइंग्स. ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होता है. 20,000 एंड 25,000. 20,000 एंड 25,000. कैप ड्राइंग्स डिक्रीजेस कैपिटल. अब मैं आगे से बोलूंगा, ध्यान देना है हमेशा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल इंक्रीज कैपिटल. Sorry, interest on capital will increase the capital. Interest on drawings will decrease the capital. To interest on drawings. They have given us 1,200 and 1,500. मैंने निकाल के रखा था. उसके बाद सैलरी टू पार्टनर उसके कैपिटल में ऐड कर देंगे. सो सैलरी टू पार्टनर इंक्रीजेस कैपिटल. वो सैलरी हमने निकाली थी 36,000. कमीशन टू ए पार्टनर इंक्रीजेस हिज कैपिटल. एड इन कैपिटल. देखो फ्लक्चुएटिंग में आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं, खाली कैपिटल है. फिक्स कैपिटल में आपके पास कैपिटल करंट अकाउंट ऑप्शन है, तब थोड़ा सोचना पड़ता है. कितनी कमीशन? 20,000. फिर नेट प्रॉफिट टोटल 90,000 के प्रॉफिट इन 3:2. 5436 ऊपर हमने लिखा है, मैं वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. टू बैलेंस कैरिड डाउन. मैं दोनों की टोटल ले लेता हूं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट की, वो मेरे लिए इजी होगा. 1,00,000 प्लस इसका 78,800, दोनों मिला के 1,78,800. यहाँ पे इसका 34 कैपिटल में 50,000 था, करंट में 34,500. दोनों क्रेडिट है ना. क्रेडिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट ऐड होगा, क्रेडिट डेबिट माइनस होगा. 50,000 प्लस 34,500 84,500 रहेगा. चेक करो बराबर है क्या. आपके आंसर के साथ मेरा टैली हो रहा है क्या, देखो करो, जल्दी लिखो. लिखो जल्दी. प्लीज कंप्लीट इट. गुड. कैपिटल इज रॉन्ग. मैडम कैसे? हाउ कैपिटल इज रॉन्ग? इट्स करेक्ट. देखो
क्या लिखा है पढ़ो. करंट अकाउंट बैलेंस में अपीयर इन इधर साइड, डेबिट और क्रेडिट लिखा है. पढ़ो जरा. मीन्स दे मीन करंट अकाउंट में शो डेबिट बैलेंस और करंट अकाउंट में शो क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. मतलब अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है विच इज द मेथड, तो हम मान के चलते फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर इज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी so as it is credited to partner's current account. Actually this is wrong. This is 100% wrong. चलो इन्होंने क्या लिखा है वो समझाता हूं. इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर इज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी. आई डू एग्री. इंटरेस्ट पार्टनर का लोन लिया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हमने पार्टनर से लोन लिया, हमने मतलब फर्म ने, तो लोन इज ए लायबिलिटी और उसका इंटरेस्ट हमें पे करना होगा. तो हम एक्चुअली हम उसके लोन में ऐड करते हैं. मैं करेक्ट ट्रीटमेंट लिख रहा हूं. ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है इनकी. इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट लिख रहा हूं. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए पार्टनर एंट्री आनी चाहिए. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन expense account debit. 2, it should not be added in capital, it should be added in loan. कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड होता है, लोन का इंटरेस्ट लोन में ऐड होता है. दिस इज वेरी कॉमन सेंस. आपको भी पता है अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट आप लोन में ऐड करोगे, कैपिटल में ऐड करोगे. लोन में कैपिटल का इंटरेस्ट लोन में करोगे क्या? ऐड नहीं. सो एंट्री होती है पार्टनर्स लोन. दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. वो बोल रहे हैं एंट्री पास करो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू कैपिटल अकाउंट. दिस इज 101% रॉन्ग. बट एंड डोंट वरी, ऐसे कोई अपने इसमें क्वेश्चंस नहीं है. बट ये जो उन्होंने लिखा है दैट इज रॉन्ग. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, ये यहां तक क्लियर है. सो इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. बट व्हेन देयर इज नो करंट अकाउंट, पार्टनर्स आर मेंटेनिंग फ्लक्चुएटिंग मेथड, राइट? देन इन इतना ध्यान नहीं होना चाहिए, देन होना चाहिए. देन interest on loan of a partner is credited to partner's capital. This is wrong treatment given in the textbook. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, राइट? ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं है, बट दिस जो भी लिखा है वो रॉन्ग है. ठीक है. सो करेक्ट पता होना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड इन कैपिटल और करंट अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एड इन पार्टनर्स लोन अकाउंट. इफ यू वांट आई कैन शो यू द प्रूफ. देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था देयर आर 5 सेक्शन 4 definition of the partnership. Partnership is a relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Existence of agreement, agreement होना चाहिए, business होना चाहिए, sharing of the profits होनी चाहिए, mutual agency होनी चाहिए. Maximum number of partners यहाँ पे देखो, मिला आपको? Section 464 of the Companies Act 2013, no association or a partnership consisting more than 100 persons, right? वो नहीं हो सकती. And then 2014 में rule 10 आ गए. It according to that it is 50. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अब भी हमें कुछ लेना देना नहीं है. लेट मी शो यू.
देखो दिस इज गुड एग्जांपल, ये अभी हमने डिस्कस किया है, अभी ठीक से पढ़ो। A and B commenced business in a partnership on 1st January 16. A and B ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया. No partnership agreement was made either oral or written. और मैंने बोला भी है, इंडिया में पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट करना, रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में पार्टनरशिप रजिस्टर होनी चाहिए, मैंडेटरी है. बट अदर देन महाराष्ट्र, registration of the partnership is not compulsory. Partnership deed, the agreement between the partners can be oral or can be written. Written अगर register किया तो उसको deed बोलते हैं. So क्या लिखा है पढ़ो. No partnership agreement was made. Agreement बना ही नहीं था. अगर agreement नहीं तो हम किसका help लेंगे? Partnership Act 1932 का. They contributed 40,000 and 10,000 respectively as their capital. 40 and 10 capital है. In addition, A also advanced 20,000 on 1st July. A ने एडवांस दिए, मतलब ये लोन होगा. ऐसा नहीं लिखा कि A has contributed capital. A also advanced rupees. A ने एडवांस दिया, it is a loan. A met with an accident on 1st April and could not attend to the partnership business. A का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एंड वो पार्टनरशिप के बिजनेस में वो मतलब काम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया. मतलब पूरा का पूरा लोड किस पे आ गया? बी पे आ गया. बी को ही सब काम करने पड़े होंगे आगे. द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड जो भी है 50,600. डिस्प्यूट्स हैविंग बीन अराइजन बिटवीन द फर्म, बिटवीन ऑफ देम फॉर द शेयरिंग प्रॉफिट. वो झगड़े कर रहे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ए का क्लेम है he should be given interest at the rate of 10% on his capital and loan. ए बोल रहा है मेरा कैपिटल 40,000 का है, तेरा तो कैपिटल 10,000 का है, तो कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ए बोल रहा है, और बोल रहा है मैंने 40 कैपिटल दिया, उसके बियॉन्ड मैंने 20,000 एडवांस दिया है, उस पे भी मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए. कैन ए सक्सीड? नो, बिकॉज अगर डीड नहीं है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट का हेल्प लेना होगा. एंड पार्टनरशिप एक्ट सेज इफ देयर इज नो डीड देन देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो भले ही ए ने 40,000 क्यों ना डाला हो एज अगेंस्ट बीस 10,000, फिर भी किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, जीरो. एंड बी, ए ने लोन दिया है ना, हाँ लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा बट 10% के हिसाब से नहीं मिलेगा, 6% पर एनम. तो ए एंड बी में झगड़े चल रहे. ए बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से, बी बोल रहा है हमने डिसाइड ही नहीं किया. ए बोल रहा है 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड मेरा लोन जो है 20,000 का, उस पे मुझे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दो. बी बोल रहा है ऐसे हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था, देयर इज नो डीड. तो अब वो एक्ट का हेल्प लेंगे, और एक्ट बोलता है इफ डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. किसी ने कितना भी क्यों ना कैपिटल दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. तो ए बोल रहा है यार मैंने ज्यादा दिया, तो लॉ उसको बोलेगा अगर तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो तुम लोगों ने डीड करनी चाहिए थी, और डीड में तुम लोगों ने मेंशन करना चाहिए था कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए. ठीक है, आगे प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल. ए बोल रहा है कि हम प्रॉफिट्स हमारे कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे. 40,000 इज टू 10,000 के रेशियो में. होगा क्या? नहीं, बिकॉज अगर आप लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया है, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया है तो आपका रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहता है. भले फिर बी ने कम कैपिटल क्यों ना डाला हो, बी को 50% प्रॉफिट्स मिलेंगे. राइट, आगे बढ़ते हैं. क्या है बी का क्लेम? क्या है? नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली. बी का क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा. He should be allowed remuneration of ₹1,000 per month during the period of A's illness. B बोल रहा है तू जब बीमार था सब मैं ही काम कर रहा था, तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 1,000 पर मंथ. ए बोल रहा है हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था सैलरी के बारे में. वो बोल रहा है लेकिन मुझे तो पूरा काम करना पड़ा. एक्ट बोलता है नहीं, अगर आपने सैलरी डिसाइड नहीं की तो किसको भी नहीं मिलेगी सैलरी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट 6% per annum. ए बी बोल रहा है कि नहीं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों 6% के साथ देंगे. देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं बिकॉज आपने डिसाइड नहीं किया था. इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%. स्टेट विद द रीजंस. राइट, क्या होगा? देखो क्या लिखा है उन्होंने.
Since there is no return or a oral partnership agreement, following rules are applicable as per Indian Partnership 1932. No interest is allowed on capital. 6% interest is allowed on a loan. Profit will be equal. No remuneration is allowed to any partner for taking part in the conduct of the business. Thus, neither A nor B will be allowed interest on capital. किसको भी interest on capital नहीं मिलेगा. 6% interest will be given, right? Will be allowed to both A and B for loans. अगर उन्हें लोन दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली एंड बी को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक अभी जो मैंने डिस्कस किया ना उसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे. ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं. मैं जो बोल रहा था यहाँ पे, एक मिनट देखो. मैंने बोला था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है. मैंने बोला था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन रहता है. एक रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर रहता है पी एंड एल, एंड उसके बाद रहता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन. हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन करते नहीं. फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल और करंट अकाउंट. हम हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में पी एंड एल अकाउंट यूज करते हैं. एक्चुअली इट इज अ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. लेट मी चेक. पार्टनर्स लोन का हम ढूंढ रहे थे ना. अच्छा ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है. ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी नहीं मिल रहा है, बट यस इट इज राइट. उन्होंने जो लिखा है वो करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है. हमें फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उसके क्वेश्चंस नहीं हमारे इसमें. बट अगर आपके टेक्स्ट बुक में तो यहाँ पे लिख लेना दिस इज अ करेक्ट ट्रीटमेंट. लिख लो. यू मस्ट नो द व्हाट इज करेक्ट. माई जॉब इज टू टीच यू करेक्ट एज वेल एज रॉन्ग. उन्होंने जो दिया है वो भी. सर व्हाट इफ बोथ ऑफ देम एग्रीज. अच्छा, दिस इज गुड क्वेश्चन. पलकेश ने अच्छा क्वेश्चन पूछा. अगर सर दोनों ने डिसाइड किया कि 6%, तो यस 6% मिलेगा. बिकॉज पार्टनरशिप इज व्हाट, इट इज एन एग्रीमेंट. अगर वो लोग बोलते हैं दोनों रेडी है 6% के लिए, तो 6% मिलेगा. लेकिन बी बोल रहा है नहीं नहीं हम नहीं दूंगा इंटरेस्ट तुझे ऑन कैपिटल, हमने डिसाइड नहीं किया, तो नहीं मिलेगा. एक भी अपोज करेगा तो नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है? बट दोनों बोलते 6%. चल ठीक है, चल हमने डिसाइड नहीं किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वादा नहीं, ले ले 6%. दोनों डिसाइड करते हैं. 10% नहीं बट 6%, तो 6% के हिसाब से. ऑलवेज रिमेंबर पार्टनरशिप लॉ. लॉ झगड़े होते तो बीच में आता है. लॉ बोलता है अब तुम तुम्हारा सुलह करो, तुम जो डिसाइड करोगे वो फाइनल होगा, मुझे बीच में मत ले लो. बट अगर आपका फाइनल नहीं हो रहा है तो मैं बीच में आऊंगा. ऐसे. नेक्स्ट. सो कोई बोल रहा है सर आशीष का कैपिटल 79,500 होना चाहिए. लेट मी चेक. क्यों रे? एनी पर्टिकुलर रीजन? नहीं, इट्स माय करेक्ट. क्यों रे 89,400? बल्कि सर बैलेंस शुड बी 79,500. नो रे, आई डोंट नो व्हाई. एटी फोर 500 होना चाहिए. टेक ना. This is 50,000 plus 34,500. That should be 84,500.
एंड आप टेक्स्ट बुक भी देखो ना, 84,500 ही है। अच्छा, और एक चीज बोलता हूँ आपके महाराष्ट्र बोर्ड की मजा, क्या लिखा है पढ़वा? एवरी ईयर ये प्रॉब्लम है, एवरी ईयर बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इक्वली इफ डीडी साइलेंट इक्वल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ डीडी साइलेंट किसको नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, मतलब क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है और पार्टनर का लोन है। एग्जाम्पल, दिस इज ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, एंड यहाँ पे दिखता है पार्टनर्स लोन 1 लाख, रेट नहीं लिखा, रेट नहीं लिखा कुछ, तो हमने कितना लेना चाहिए? 6% लेना चाहिए ना। व्हेन वी विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, तो हमें 1 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, बट हम इग्नोर करते हैं। एक्चुअली हमने लेना चाहिए, हमने 1 लाख पे 6% फॉर द ईयर, 1 लाख पे 6% फॉर द ईयर, 12/12, हमने 600 इंटरेस्ट लेना चाहिए, एंड वी शुड ऐड इन एक्सपेंस एंड वी शुड ऐड इन लोन, बट हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? दे ओनली नो, because even if question is silent, if there is a partner's loan you should provide 6%, बट महाराष्ट्र बोर्ड में वो करते नहीं, इसलिए मैंने बोला ये जाने दो, भले उन्होंने रॉन्ग लिखा है, ये उन्होंने रॉन्ग लिखा है, बट वो कंसिडर नहीं करते, दे इग्नोर। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भले ही पार्टनर का लोन होगा तो भी वो इग्नोर करते उसका इंटरेस्ट। सो ये रॉन्ग है उनका, और हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें भी एग्जाम में इग्नोर करना है, तो ही हमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे लेट मी चेक एनीथिंग एल्स। अच्छा, एक सेकंड, these are the illustrations। चलो हम ये, राइट, वी विल डू दिस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आज मैं 10 मिनट, थोड़ा 10-15 मिनट पहले छोड़ूंगा। ये करते हैं, देखो, when there is no partnership agreement between the partners, division of the profit take place in which ratio? Equal ratio, बराबर। उसके बाद to get out, to find out net profit or net losses of the businesses, dash dash account is prepared। अगर आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ढूंढना है तो हम क्या, कौन सा अकाउंट करते हैं? 11 का बच्चा भी बोलेगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस कौन सा अकाउंट देता है? P&L। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ढूंढना है तो ट्रेडिंग। कैपिटल करंट अकाउंट डज नॉट गिव यू प्रॉफिट्स, दे गिव यू कैपिटल्स और करंट अकाउंट। डैश डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, गुडविल, कोई भी बोलेगा गुडविल। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, डिड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, liability of a partner in a partnership is limited, unlimited, limited and unlimited, none of the above. Obviously this is a disadvantage of the partnership, unlimited liability. The Indian Partnership Act came in force since 1932, 1932 से maximum number of partners in a firm as per Companies Act 2030 is 50। ठीक है, person who form the partnership firm, persons who form the partnership firm are called as partners, बराबर। amount of cash or a goodwill, sorry, amount of cash or goods withdrawn by partners from business time to time, cash और उसको drawings बोलेंगे time to time,
ड्रॉइंग्स। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज अ पार्टनरशिप फर्म, उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। आगे, एक्ट अंडर पार्टनरशिप फर्म्स आर रेगुलेटेड, एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म्स आर रेगुलेटेड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आईपीए, पूरा लिखो 1932, नाम ही है इंडियन, द इंडियन पार्टनरशिप नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ द रजिस्ट्रार, हमारे पार्टनरशिप का नाम रजिस्ट्रार के बुक्स में एंटर करना, मतलब रजिस्टर के पास जाके हम हमारी फर्म को रजिस्टर करते हैं, तो उसको बोला जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। हम क्या करते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ऑफ फर्म, आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, एक ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार ऑफिसर, जैसे आपके कॉलेजेस में वो रजिस्ट्रार होता है वैसे ही, राइट, रजिस्टर ऑफ फर्म एक ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है, उसके पास सब हमें पार्टनरशिप फर्म को जाके रजिस्टर करना होता है, तो हम उसके पास डीड वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स देंगे, एंड फिर ऑन पेमेंट ऑफ द फीस वो हमारे फर्म को रजिस्टर करेगा। रजिस्टर मतलब क्या करेगा, उसके पास एक फर्म्स के डिटेल्स देने के बाद वो उसके डॉक्यूमेंट में या उसके रजिस्टर में वो हमारे नाम की एंट्री करेगा हमारे फर्म की, और हमारी फर्म रजिस्टर हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, डीड, रिटर्न फॉर्म मतलब डीड। अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर रिमेन कांस्टेंट, ऑब्वियसली कौन से मेथड में कांस्टेंट फिक्स रहते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में फ्लक्चुएट होता है। आगे, proportion in which partners share the profits is a profit sharing ratio, PSR, PSR में they share the profits, right, profit sharing ratio में, उस रेशियो को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाता है। such capital method in which only capital account is maintained for each partner, करंट अकाउंट नहीं होता, खाली कैपिटल रहता है, वो रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपके टेक्स्ट बुक के सामने लिख दो पेंसिल से, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो नीड टू चेक एंड हमेशा पीछे देखने का, ठीक है। द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, कौन सा ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सब एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे व्हेन वी आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, कौन से अकाउंट में किया जाएगा, करंट अकाउंट में। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, वो ऐसे एक्सपेंस जो पहले ही पे करते हो, एनीवन, एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, क्या बोलते हो, यस प्लीज, नहीं टाइप करो, प्रीपेड, परफेक्ट, गुड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये 11 का क्वेश्चन है क्या, नहीं, यस ऑब्वियसली 11 के बच्चे भी बोल देंगे, प्रीपेड expenses. Next, the accounts that are prepared at the time of each accounting year, end of each accounting year, ईयर जब खत्म होता है तो आप क्या बनाते हो, फाइनल अकाउंट्स, यही तो चैप्टर का नाम है, फाइनल अकाउंट्स। 11th में भी फाइनल अकाउंट्स थे। देन an asset which can be converted into cash easily, अच्छा उन्होंने करंट एसेट दिया क्या, कभी आई नीड टू चेक, इट कैन बी कैश इक्विवेलेंट्स एज वेल। अब एग्जैक्टली आपके इसमें क्या करंट, करंट एसेट की डेफिनेशन बहुत अलग है, ठीक है, ये मैं जब फाइनल अकाउंट्स आएगा तब बोलता हूँ, जो हम अभी ऑब्वियसली इसके बाद हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द बैलेंस शीट,
अच्छा ठीक है, गुड, ये उन्होंने लाया है फर्स्ट टाइम, पहले ये नहीं था। राइट, ये अभी तक मुझे सिखाना है। द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेसेस आर रिकॉर्डेड, द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड, P&L में जानी चाहिए वो, राइट। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो सकता है। देखते हैं, डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट, ये पता होगा, डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट, एनीवन? डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट, लॉस मतलब डेबिट ऑलवेज, एक्सपेंस और लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। सो ट्रेडिंग अकाउंट या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिखाएगा, और उन्होंने हमें डेबिट पूछा है, मतलब ये रहेगा ग्रॉस लॉस। फिर किसी भी अकाउंट का, आपका ट्रेडिंग का रहने दो, P&L का रहने दो, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में, एनपीओ में। रिवैल्यूएशन अकाउंट रहने दो, रियलाइजेशन अकाउंट रहने दो। डेबिट मतलब लॉस, डेबिट मतलब लॉस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस इन P&L इज नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेट मी चेक, परफेक्ट। आगे स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नो, एक्चुअली पार्टनरशिप तो बिजनेस करती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज ए ट्रेडिंग कंसर्न, फॉल्स। परचेस करेंगे सेल करेंगे, परचेस करेंगे सेल करेंगे, एंड दे विल अर्न प्रॉफिट। मैंने बोला था चैरिटी के लिए पार्टनरशिप नहीं बन सकती, पार्टनरशिप खाली प्रॉफिट के लिए बन सकती है। आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, नो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये मैं 11 के बेसिस पे आंसर दे रहा हूं। Carriage inward is a carriage on purchase. Anyone will say yes, fall, true. Then adjustments are recorded in the partner's current account is fixed capital method. Adjustments are recorded in the partner's current account in fixed capital method. Yes, because अगर fixed capital method है, सब adjustment किस में हो जाएंगे? current account में हो जाएंगे. This is true. Prepaid expenses are treated as liabilities. Prepaid expenses are assets. This is false because they are assets. If partnership deed is silent, partners share profit and losses in the proportion of their capital? No, false. They share equally. समझा? अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते? इक्वल रेशियो में, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग, नॉट इन कैपिटल रेशियो. बैलेंस शीट इज एन अकाउंट? नो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, फॉल्स. डेबिट क्रेडिट नहीं होता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. P&L अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें डेबिट क्रेडिट होता है, टू बाय लिखते हो आप, बराबर ना? आगे, wages paid for installation machinery is a revenue expenditure? No, it is a capital expenditure. ठीक है, मैं वैसे भी फाइनल अकाउंट्स में लेने वाला हूँ. डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, सब मैं फाइनल अकाउंट्स में लूंगा. देयर इज वन क्वेश्चन, किसी ने अभी मुझे पूछा है, सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स व्हिच आर नॉन रिकरिंग इन द नेचर. नॉन रिकरिंग नेचर को या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो या कैपिटल रिसीट बोलो. वी परचेस फिक्स असेट्स, नॉन रिकरिंग इन द नेचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट्स बनते हैं, एंड कैपिटल रिसीट की वजह से लायबिलिटीज बनते हैं. लोन टेकन इज अ कैपिटल रिसीट, कैपिटल टेकन कैपिटल रिसीट. या यू सेल फिक्स असेट, उसके बाद जो पैसे आते हैं वो रूटीन वाले पैसे नहीं है, वो डेली नहीं आएंगे, वो कभी कभार आएंगे, कैपिटल रिसीट. ठीक है, दे आर कैपिटल रिसीट्स. आगे, सो कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स व्हिच आर नॉट इनकम. पैसे आ रहे हैं बट वो इनकम नहीं है. मतलब कौन से? लोन टेकन, पैसे आ रहे हैं बट इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है. कैपिटल ले लिया, पैसे आ रहे हैं बट इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है. फिक्स असेट सेल कर दी, पैसे आ गए बट इनकम नहीं है, वो हम फिक्स असेट डिक्रीज कर रहे हैं, इट इज नॉट इनकम,
फिक्स एसेट डिक्रीज हो रही है. गुड सोल्ड एंड पैसे आ रहे, इट इज इनकम, बिकॉज वो जो पैसे आ रहे वो इनकम है, सेल्स अकाउंट है, तो वो रेवेन्यू रिसीट हुई. डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑल दोज आर रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू सिंपल वर्ड में बोलूं, रेवेन्यू मतलब पी एंड एल. रेवेन्यू मीन्स ट्रेडिंग एंड पी एंड एल. ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में जो जो आता है मतलब इनकम एक्सपेंसेस, राइट. ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में जो जो आइटम रहेंगे, परचेस, सेल्स, कैरेज, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, राइट, जो भी रहेगा ऑल आर रेवेन्यू इन द नेचर. एंड कैपिटल मतलब बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में जो जो रहेगा वो कैपिटल नेचर रहेगा. Like assets are capital expenditure. Assets are capital expenditure, fixed assets. And liabilities are capital receipts. So simple words में अगर मुझे बोलना है, इसमें ज्यादा फोकस एनपीओ में आएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इस चैप्टर में तो ये पूरा चैप्टर इन पे आता है, ठीक है. इनकम रिसीव्ड एडवांस इज अ लायबिलिटी. ट्रू. एनीथिंग रिसीव्ड एडवांस इज अ लायबिलिटी. आरडीडीज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स, ये सबको पता है, ये फॉल्स है. आरडी डेटर्स पे बनता है. डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट एसेट, इज नॉट कैलकुलेटेड, बराबर है, वो फिक्स एसेट पे कैलकुलेट करता है. दिस इज ट्रू. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. ट्रू. इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. इनडायरेक्ट एक्सपेंस नीचे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर. दिस इज फॉल्स. बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी. बैंक लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म. करंट मतलब शॉर्ट टर्म, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म. दिस इज फॉल्स. नेट प्रॉफिट इज अ डेबिट बैलेंस इन पीएनएल. डेबिट बैलेंस इन पीएनएल, डेबिट मतलब लॉस, तो नेट लॉस होगा. उन्होंने हमें नेट प्रॉफिट पूछा है. नेट प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. मैं ई वाला देखता हूँ, उसमें से जितना जितना हुआ है वो कवर करता हूँ, ध्यान देना. पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन डैश डैश रेशियो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. दे शेयर इन इक्वल रेशियो. अगर डीड साइलेंट है तो दे विल शेयर इन इक्वल रेशियो. रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज ऑप्शनल इन इंडिया. इज नॉट मैंडेटरी, इज ऑप्शनल इन इंडिया. महाराष्ट्र में मैंडेटरी. आप बोलोगे सर महाराष्ट्र तो इंडिया में आता है. जब मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इंडिया. महाराष्ट्र इज एन एक्सेप्शन. ठीक है, महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज एन एक्सेप्शन. पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी. चेक करो रे क्या आंसर है. मस्ट बी. इतना इसे मस्ट बी लिखा है, क्या है, क्या एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, क्या लिखा है. चेक करो रे पीछे आंसर कोई दो. पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लॉफुल. अच्छा ठीक है, लॉफुल, मतलब इलीगल बिजनेस नहीं हो सकता. ठीक है, आगे. लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म आर अनलिमिटेड. ठीक है, अनलिमिटेड. लिमिटेड नहीं होती है तो डिसएडवांटेज है ना पार्टनरशिप का, इसलिए लोग कंपनी बनाते हैं. द बैलेंसेस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज डैश डैश अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड. ड्रॉइंग्स अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा. करंट अकाउंट. नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश डैश अकाउंट. Interest on capital is debited to interest on capital and credited to capital account. It is debited to interest on capital. Expense को debit किया जाएगा interest on capital and capital या current account को credit किया जाएगा. बच्चे लिख के आते हैं capital and current account. They don't understand capital और credit, current के credit पे लिखते हो, मतलब capital and current account को credit कर रहे हो, debit कर रहे हो interest on capital. मे बी टेक्स्ट बुक में पी एंड एल भी लिखा होगा, आई डोंट नो, बिकॉज एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल के डेबिट में जाता है. सो दोनों में से एक आंसर होगा. कोई कंफर्म करेगा क्या क्या आंसर है.
मेरे अगर मैं एक स्टूडेंट रहता तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता, मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज होता है पीएनएल के डेबिट पे। पीएनएल लिखा है, देखो उन्होंने पीएनएल लिखा है, मतलब डायरेक्टली एंट्री पीएनएल की, डायरेक्टली पीएनएल मिल जाएगा। पहले एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंड फिर पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उन्होंने ये लिखा है, तो आप एग्जाम में भी ये लिखो। आगे, पार्टनर्स आर डैश डैश फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। जॉइंटली लायबल रहेगा ये, जॉइंटली एंड सेवरली। क्या आंसर है चेक करो, सब मिलके लायबल रहते हैं, सब मिलके, जॉइंटली एंड सेवरली। आंसर चेक करो क्या है, जॉइंटली होगा, एटलीस्ट जॉइंटली तो होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। हाँ, जॉइंट एंड सेवरल, बघा देखो। सो जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल मतलब क्या, अगर लाइबिलिटी तो सब मिलके पे करेंगे, अगर लाइबिलिटी है तो सब मिलके पे करेंगे, दैट इज जॉइंटली। एंड सपोज कोई पे नहीं कर पाता है तो जो बाकी है उनको पे करना पड़ेगा इंडिविजुअली। सपोज 3 पार्टनर है ए बी सी, कोई लाइबिलिटी तीनों मिलके पे करेंगे, बी सी के पास पैसे नहीं पे करने के लिए, तो ए एंड बी को पे करना पड़ेगा, बी के पास पैसे नहीं तो ए को पे करना पड़ेगा। देखो एबीसी की लाइबिलिटीज तीनों ने मिला के पैसे डाल के वो पे करना चाहिए, नहीं है सी के पास पैसे नहीं तो ए एंड बी पे करेंगे, बी के पास भी नहीं तो ए पे करेगा, और ए के पास भी नहीं तो लाइबिलिटी डेफिशिएंसी हो गई, फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है, तो उस बंदे का लॉस होगा, उसको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड अ सेवरली, जॉइंट एंड सेवरली लाइबल। आगे, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। पार्टनर इन प्रॉफिट, में प्रॉफिट की बात कर रहा था मैं, लाइबिलिटी अलग और प्रॉफिट अलग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली शेयर्स प्रॉफिट्स, बट एवरीवन शेयर्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अलग एंड प्रॉफिट अलग। प्रॉफिट बिजनेस करने से होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इज अ प्रॉफिट। लाइबिलिटी क्यों, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं थर्ड पार्टीज को पे करने के लिए, तो सब पार्टनर्स, एवरी पार्टनर, राइट, को लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तभी तब पार्टनर नहीं बोल सकता मैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है, नहीं चलेगा। पार्टनरशिप डीड इज एन डैश डैश ऑफ द पार्टनरशिप इज एन, क्या, अच्छा, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, एक सेंटेंस कर दिया, उसका एक क्वेश्चन बना दिया, एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। द विड्रॉवल ऑफ द पार्टनर, विड्रॉवल बाय द पार्टनर फॉर अ पर्सनल यूज फ्रॉम हिज फर्म इज डैश डैश टू हिज अकाउंट, इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट रहेगा, है क्या बराबर, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ड्रॉइंग्स आर डेबिटेड टू हिज अकाउंट ना। Is there any liability ratio? No, no, no. There is no liability ratio. PSR is applicable to everything. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाइबिलिटी, हाँ, डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, यस परफेक्ट, ड्रॉइंग्स आर डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कमीशन पेएबल टू पार्टनर इज डैश डैश टू द फर्म, कमीशन पेएबल टू पार्टनर इज एक्सपेंस ऑफ द फर्म होना चाहिए, ये इज डैश डैश टू द फर्म, कोई बोलेगा मुझे क्या है, लाइबिलिटी टू द फर्म, अच्छा लाइबिलिटी ऑफ द फर्म होनी चाहिए, ठीक है, वही मैंने बोला लाइबिलिटी, कोई एक्सपेंस ऑफ द फर्म भी बोल सकता है। कमीशन इज एन एक्सपेंस, उनका वर्डिंग क्या है, कमीशन पेएबल, अच्छा पेएबल मतलब लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। व्हेन व्हेन पार्टनर्स अडॉप्ट फिक्स कैपिटल मेथड, देन दे हैव टू ऑपरेट, फिक्स कैपिटल मेथड में दे हैव टू ऑपरेट करंट अकाउंट, ठीक है, दे हैव टू ऑपरेट करंट अकाउंट। क्या 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 क्या, इनकम लिखा है, एक सेकंड कंफर्म करो सर, इन द टेक्स्ट फॉर द प्रीवियस एज एन इनकम,
कमीशन पेबल टू पार्टनर कैसे फर्म की इनकम होगी रे? इट शुड बी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म. कमीशन पेबल टू पार्टनर, हमें कमीशन पे करनी और हमारी इनकम होगी, ऐसे कैसे? लाइबिलिटी इज करेक्ट. ठीक है, उधर चेंज कर दो. अरे इनकम लिखा है, हर चीज लिखा वो करेक्ट थोड़ी होता है. ठीक है, इट शुड बी कॉमन सेंस शुड प्रिवेल यार, कि कमीशन पेबल, एनी पेबल हाउ कैन बी योर इनकम? इट हैज टू बी योर लाइबिलिटी. और ज्यादा एक्सपेंस लिखा तो भी चल जाएगा मेरे लिए. ठीक है, बट वहां पे पेबल वर्ड यूज किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये लाइबिलिटी. If partner's current account shows dash dash balance, it is shown on the liability side. If they show credit balance, liability मतलब credit. The expenses paid for the trading purpose are known as direct expense. Trading purpose. I think उन्हें trading expense नहीं लिखना चाहिए, direct expense होना चाहिए. ठीक है सर. फॉर 11th, यस नहीं नहीं, क्या हो रहा है 11th में ना, when the partners adopt fixed capital method, then they have to operate. देखो कैपिटल अकाउंट हर मेथड में आता है ना, फिर वो फ्लक्चुएटिंग हो या फिक्स्ड हो, कैपिटल अकाउंट रहेगा ही रहेगा. फिक्स में अलग कौन सा अकाउंट ऑपरेट करते हैं? करंट अकाउंट. तो मोर एप्रोप्रिएट इज जस्ट करंट अकाउंट. ठीक है, कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड में आता है, इसलिए 13 चेक करो, डायरेक्ट एक्सपेंस ही होना चाहिए. कभी कभी ट्रेडिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, गारंटी नहीं तुम्हारी टेक्स्ट बुक की. ट्रेड एक्सपेंसेस, अच्छा मैंने बोला ना वो कुछ तो ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेड एक्सपेंस लिखेंगे. ठीक है, आगे. Cash receipts which are recurring in the nature are called as, recurring in the nature are revenue receipts. Recurring. Sale is always daily, recurring. Rent received, recurring. Dividend received, recurring. Interest received, recurring. They are revenue receipts. Incomes. I mean incomes. Return outward. बाहर जा रहा है. Purchase से minus होगा. देखो, when commission is allowed to any partner, it is expense of the firm. क्या लिखा है पढ़ो रहे? इसका 19 का आंसर एक्सपेंस नहीं है. क्या लिखा है? एक्सपेंस होना चाहिए. देखो 19 का, when commission is allowed to any partner. ठीक है, हाँ, एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म. और इधर इनकम लिखा है, कैसे चलेगा? ऊपर इनकम लिखा है ये वाले में, कमीशन पेबल टू पार्टनर इज इनकम, और नीचे लिख रहे एक्सपेंडिचर. ये है रियलिटी. आगे तो जो बाकी है मैं उनको हाईलाइट करता हूं. दो ऊपर एक अलग आंसर, नीचे एक अलग आंसर, कैसे चलेगा? when goods are distributed free sample, it is treated as dash dash, it is revenue expenditure, advertisement expense of business रहेगा. इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा. ठीक है, सो एक और क्वेश्चन बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में होके वी विल शिफ्ट टू द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, मेरा ट्यूसडे को लेक्चर रहेगा. हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मैंने बोला ना उनको, ऐसे कुछ तो लिखते वो. इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लिखा तो चल जाता ना. अच्छा ठीक है, आई हैव एड्रेस ऑल द क्वेश्चन जो भी चैट बॉक्स में है. यस ठीक है, चलो वैसे भी ऑलमोस्ट 5:30 हो ही गए. ठीक है अच्छा, बीएमसीसी टाइमिंग इज 3:30 फ्रॉम मंडे टिल 3:30 ना, तो वैसे भी हम 3:30 को स्टार्ट करते हैं. कॉलेज का जल्दी 5-10 मिनट छोड़ो. बीएमसीसी वाले आपको क्या त्रास, कभी परेशानी नहीं करते बीएमसीसी वाले, क्यों टेंशन ले रहे हो? बीएम इज अ गुड कॉलेज. उससे अच्छा वाडिया है, वो तो पूछते भी नहीं. ठीक है, 13 से यूनिट टेस्ट इन, अच्छा चौकसी. ठीक है, ओके, वी कैन एंड टुडेज लेक्चर. थैंक यू.